اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد قال امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کل یوم لا یعصی اللہ فہو عید۔ ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سلام اور تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ ایامکم و ایامکم سعیدہ۔ مولا آپ سب کو بہرحال مبارک کریں، یہ مبارک دن، یہ عید آپ سب کو مبارک ہو۔ آپ کو، آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے، رشتہ دار، اعزاء و اقارب سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ لے نتیجے کا دن آ گیا۔ پورے مہینے جو زحمت کی تھی، آج اس زحمت کا بہرحال اجر لینا، اس زحمت کی مزدوری لینے کا یہ دن ہے۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فہو عید۔ ہر وہ دن کہ جس دن خدا کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ مولا نے ایک حجت تمام کر دی، آقا نے ایک حجت تمام کر دی، یعنی جس دن بھی آپ نے گناہ نہیں کیا وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن بھی آپ نے گناہ نہیں کیا وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے۔ اب یہاں سے یہ ہے کہ معصوم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو ہر پلیدگی، ہر غلط چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ معصوم کی واضح دلیل ہے، مولا نے فرما دیا کہ جس دن ہم لوگ گناہ نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اب اس سے یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں عید منانا، جس دن بھی چاہیں عید منا لیں، ہر روز عید منائی جائے، عید خوشی کا دن ہوگا، تو ہر روز گناہ نہ کیا جائے کہ معصوم کی دعاؤں میں بھی ہم شامل ہو جائیں اور خدا کی بندگی میں، اس کی اطاعت اور مطیع بندوں میں بھی ہم لوگ شامل ہو جائیں۔ 30 دن ہم نے بہرحال خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہر گناہوں سے بچایا، ہر پلیدگیوں سے بچایا، ہر برائیوں سے بچایا۔ یہ 30 دن ہم نے اول ماہ رمضان سے، بہت سے لوگ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ماہ شعبان اور ماہ رجب کے بھی روزے رکھے ہیں، اور اس کے بعد پورا مہینہ رمضان کا بھی رکھے ہیں، 3 مہینہ، ان کے لیے عید در عید ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں وضو کے اوپر وضو، یعنی نور علی النور، اسی طرح ان کے لیے عید در عید، عید کے اوپر عید ان کے لیے ہوگی۔ کہ ان کے خوش قسمت ہے وہ کہ جس شخص نے بہرحال یعنی خداوند عالم کے فرمان جو واجب تھا ہم پہ، واجب تو انجام ہی دیا، اور مستحبات کو بھی اس نے انجام دیا۔ اس شخص نے مستحبات کو بھی انجام دیا، جو مستحب تھا ان مہینوں میں رکھنا، اس نے مستحب روزوں کو بھی رکھا۔ 30 دن ہم نے روزے رکھے، اپنی زبان کو بچایا، اپنے کانوں کو بچایا، اپنے قدموں کو بچایا، اپنے ہاتھوں کو بچایا، اپنی نگاہوں کو بچایا۔ مین چیز اپنی نگاہوں کو بچایا، اپنے ذہنوں سے جو گناہ ہوتے تھے ان سے ہم نے بچایا، یعنی ہر چیز سے ہم نے دوری اختیار کر لی، ہر چیز سے ہم نے دوری اختیار کی کہ خدا کی بارگاہ میں ہم ہیں۔ اس وقت خدا حاضر و ناظر ہے، وہ تو ہمیشہ ہے، لیکن اس وقت کیونکہ خدا کے دسترخوان پہ ہم لوگ مہمان تھے، یہ 30 دن ہم لوگ اللہ کے دسترخوان پر مہمان، خداوند عالم کے دسترخوان پہ ہم لوگ مہمان تھے۔ تو پروردگار کے جب مہمان، تو ہم لوگوں نے کہا کہ مہمانی میں جب کسی کے گھر کوئی جاتا ہے تو کوئی ایسی حرکت نازیبا نہیں کرتا کہ صاحب خانہ کو، اس گھر والے کو کوئی تکلیف ہو یا اسے برا لگے، اسے برا لگے یا اسے تکلیف ہو۔ صاحب خانہ کو احتیاط کرتے ہیں، اس کی جگہ گھر میں اگر جاتے ہیں تو بچوں کو بھی منع کریں گے، دیکھو شور و غل نہ کرنا، دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ان کو برا لگ جائے، ان کے گھر پہ ہم لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی چیز توڑنا پھوڑنا نہیں، کوئی چیز گرانا نہیں، کوئی نقصان نہ کرنا۔ یہ اس میزبان کا اتنا ہم احترام کرتے ہیں،
माह खुदा माह सयाम में भी हम अपने आप को बचाते हैं कि उसके हुक्म को न तोड़ा जाए, उसके फरमान को न तोड़ा जाए, उसके दिल को न दुखाया जाए। हर वो काम हम लोग करें जिससे खुदा राजी रहता है, और करते हैं माह रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह। सारे काम किए जाते हैं कि जिससे खुदावंद आलम हमसे खुशहाल हो जाए। रमजान में हम लोगों ने अपने नफ्स पर काबू रखा, गुनाहों से बचे, अपने शिकम पर भी हमने काबू रखा। 1 महीना भूखे रहे, 1 महीना अपने जिस्म को अजियत ईज़ा दी, लेकिन उसके साथ साथ रूह भी जरूरी थी। दोनों चीजों को हम लोगों ने किया। आज बहरहाल ये ईद का दिन और ये रात जो कि मुबारक दिन मुबारक रात है, 30 दिन की मजदूरी आज लेना है। 30 दिन जो मजदूरी हम लोगों ने की थी, आज वो हमें लेना है। और आज की बहरहाल ये जो रात जो गुजरती है, यानी आज ईद का दिन और ये कल की रात जो है, कहते हैं कि ये रात इसको इबादत में गुजारा जाए, यानी शब ऐद के लिए ताकीद की गई। शब ऐद इसको इबादत में गुजारा जाए पूरी रात। जैसे शब-ए क़द्र में हम जगे हैं, शब-ए क़द्र में हमने वहां पर बैठकर खुदावंद आलम की इताअत फरमाबरदारी की है, उसी तरह से ये शब ईद में भी बैठकर खुदा की इबादत की जाए, क्योंकि ये नतीजा लेने का वक्त है, नतीजा लेने का वक्त है, मजदूरी लेने का वक्त है। तो ये रात, इसमें बहुत सी दुआएं वारिद हुई हैं, बहुत सी दुआएं वारिद हुई हैं। मफातिहुल जनान के अंदर मौजूद है, दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। शेख अब्बास कुम्मी ने भी इसको नकल किया है कि उन दुआओं को जरूर पढ़िए, उन दुआओं को जरूर पढ़ा जाए। और बहरहाल इस रात में खैर व खैरात के लिए भी कहा गया है, इस रात में खैर व खैरात भी किया जाए, क्योंकि आखिरी दिन है। इस रात में भी जितना खैर व खैरात किया जाए वो चंद बराबर वो लिखा जाएगा, चंद बराबर उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। इस रात में जैसा कि रवायतें भी हैं कि अपनी फैमिलियों को जमा करो और बैठकर उन्हें दीन की तालीम दी जाए। बैठकर जो दुआएं उस वक्त वारिद हुई इस शब में, वो दुआओं को पढ़ा जाए, फैमिली के साथ अपने बैठ के उन दुआओं को पढ़ा जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। मुतासिफाने बहरहाल बहुत सी फैमिलियां अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हैं, इस तरह करती हैं। बहुत सी फैमिलियां और भी तैयारी करती हैं कि मसलन कल ईद का दिन है, ईद का दिन है यानी आजाद हो गए, ईद का दिन आ गया यानी अब सब कुछ जो है, सारे गुनाह अब जो है अब माफ है। ईद के दिन जो है कोई गुनाह नहीं लिखा जाता है। बाज लोगों का नजरिया ये है कि ईद के दिन जो है यानी हर तरह से इंसान आजाद है, जो चाहे वो करे। ये मेरे भाई और मेरी बहनों, पूरे महीने की तुमने की हुई उस जहमत को पानी में मिला दिया, खाक डाल दिया उसके ऊपर तुमने। 1 महीना जिस्म को अजियत दिया, 1 महीना रूह को अजियत दिया, 1 महीना घर वालों को अजियत किया, 1 महीना जहां काम करते थे उन लोगों को अजियत किया, 1 महीने तक हर चीज से बचते रहे, और आज 1 दिन में सारी चीजों को जाया कर दिया। 1 दिन में सारी चीजें जाया हो गई, 1 दिन में सब कुछ जो है बेकार हो गया। तो ऐसी ईद किसी काम की नहीं है, वो ईद का दिन नहीं होगा, बल्कि हम कहते हैं वो बदतरीन दिन आपके लिए होगा, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन के हदीस के मुताबिक मौला फरमाते हैं कि हर वो दिन जिस दिन तुमने गुनाह न किया हो, वो दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है, वो दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है। और इस दिन तो माशाअल्लाह, बहरहाल अब तो शायद वो कम हो गया, लेकिन पहले मुझे याद है कि बहरहाल जब छोटा था कि ये देखा जाता था, लोग सुनते थे, आपस में बातें होती थी कौन सी फिल्म लगी हुई है, कौन से टाकेज में, और पहले से जो है 4-5 दिन पहले जो है टिकट तहैया कर लिया जाता था, क्योंकि ईद के दिन टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माशाल्लाह उस दिन इबादत करने वाले बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उस इबादत में शामिल होने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बहरहाल वो टिकट पहले से बुक करा लिया जाता था, और पहले से प्लानिंग की जाती थी, कौन से मॉल में जाना है, कौन से पार्क में जाना है, किस जगह जाके क्या करना है, कहां जाकर क्या खाना है, कहां जाकर क्या पीना है, कहां जाकर क्या घूमना है, वो सारे प्रोग्राम, सारे बरनामे बनाए जाते थे। यहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। चंद रोज पहले काश यही प्रोग्राम पहले बनाए गए थे कि माह रमजान आया था, हमने गुनाहों से हमें अपने आप को बख्शवाना है, हमें अपने आप को निजात देना है आतिश जहन्नम से, हमें जन्नत की चाबी ले लेना है, हमें जन्नत में जाकर घर बनवाना है, हमें अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब के सिले रहम बजा लाना है, हमें अपने माँ बाप की दुआओं को लेना है, हमें बुजुर्गों का एहतराम करना है, हमें बच्चों के प्यार को बाकी रखना है, हमें अज़्ज़ा व अक़ारिब के दिल को जीत लेना है, हमें सिले रहम अंजाम देना है, गरीबों की मदद करना है, भूखों की मदद करना है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें रातों को इबादतें करना है,
ہمیں نماز ہے شب میں اپنے وقت کو گزارنا ہے، ہمیں خدا کی بارگاہ میں حضور پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اشکوں کو خدا کی بارگاہ میں گرانا ہے۔ اے کاش یہ پورے پروگرام ہم نے پہلے بنائے ہوتے، یہ چیزیں ہم آئندہ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں کہ کل عید کا دن آ رہا ہے، کل عید کا دن آ رہا ہے، کل ہمیں جتنا خیر ہے ہم وہ کریں گے، جتنی اچھائی ہے ہم وہ کریں گے، جتنی برائی ہم دور کریں۔ کاش کہ اسی دن عید کے دن کے لیے پروگرام بنایا ہوتا کہ وہ دل جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، کل عید کا دن ہم جا کر اپنی بہنوں کو اپنے آپ سے جا کر منوائیں گے، وہ بھائی جو ہم سے دور ہو گئے ہیں اپنے بھائیوں سے جا کر ہم ملیں گے، اپنے بھتیجوں سے ہم جا کر ملیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ہم جا کر ملیں گے، وہ دل جو ہم سے دکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں میں ہمارا آنا جانا ختم ہو چکا ہے، جن لوگوں سے ہم مل جل نہیں رہے، کل ہم جا کر ان سے ملیں گے۔ کاش یہ پلاننگ کی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ گھر والے منع کریں، کبھی ہوتا ہے شوہر منع کرتا میں تو نہیں جانے کا، میں تو نہیں جاؤں گا، تمہیں جانا ہو تم جاؤ، کبھی بیوی کہتی ہے آپ کو جانا ہو جائیے میں نہیں جاؤں گی۔ اے کاش اس دن بیٹھ کر یہ فکر کی گئی ہوتی ہے، بیوی منع کرے تو شوہر کہے کہ نہیں تمہیں چلنا ہے، شوہر منع کرے تو بیوی کہے، ایک دوسرا اگر منع کرے دونوں کو ساتھ میں لے کر جانا ہے۔ وہ جو بچھڑے ہوئے دل ہیں، وہ جو موتی بکھر گئے تھے، اس دن ملا کر ایک ہار بنا دو۔ وہ جو پھول الگ الگ بکھرے ہوئے تھے ملا کر ایک گلدستہ بنا دو۔ تب یہ ہماری کامیابی ہے، تب یہ ہماری عید ہے، تب یہ ہماری عید اور ہمیں فخر کرنے کا یہ دن ہے کہ جس دن جتنا بھی زیادہ اگر ہم فخر کریں گے، جتنا بھی اپنے اوپر ہم ناز کریں گے، وہ ہمارے لیے کم ہوگا۔ خاص طور سے معصومین نے کہا ہے، معصومین کی تاکید ہے، اس ماہ رمضان میں بھی ہمیشہ تاکید ہے، خاص طور ان ایام میں جو خوشی کے دن ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ تاکید کی گئی کہ ان دنوں میں کم سے کم لوگوں کے دلوں کو جیتو، لوگوں کے دلوں کو جیتو۔ وہ دل جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں انہیں جا کر منواؤ، انہیں جا کر ان کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرو۔ ایک پھول لے کر ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ، ایک تحفہ لے کر ان کے گھر پہنچ جاؤ، وہ ہمیں ملنا بھی نہ گوارا کریں، آپ جا کر دروازے کو دق الباب کریے اور جا کر سلام کریے اور کہیے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ مجبور ہو جائے گا وہ دروازہ کھولنے کو، پر نہیں بھی کھولے کوئی بات نہیں، آپ نے اپنے فرض کو شرعاً ادا کر دیا ہے، آپ نے شرعی طور پہ اپنے فرض کو ادا کر دیا ہے کہ جو معصومین نے، جو خداوند عالم نے جو چیزیں ہمارے پر فرض کی تھیں وہ آپ نے اپنی اطاعت کی ہے، اپنی بندگی کی ہے، اپنے آپ کو آپ نے جا کر وہ ثابت کر دیا۔ بولو سامنے والا وہ ماننے کے لیے تیار ہو یا ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر میری گزارش ہے، اپنے بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین سے ضد کرو، چلو چچا کے گھر چلو، چلیں گے، چلو پھوپھی کے گھر ہم کو جانا ہے، خالہ کے گھر ہم کو جانا ہے۔ بچے ضد کریں کہ ہم کو اپنے رشتہ داروں سے جا کر ملا، اگر والدین ان سے دور ہو چکے۔ اے میرے پیارے بچوں، اپنے ماں باپ کو ترغیب دلاؤ، تمہیں اللہ اجر دے گا، تمہیں پروردگار زندگی دے گا، تمہاری حاجتوں کو خداوند عالم سنے گا۔ اے کاش ہم فرامین معصوم جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ ایک مہینہ جو ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، عادت سی ہو گئی، کہتے ہیں کہ جو ہم نے روزہ رکھا چند روز شروع کے ہم لوگ کے لیے بہت سخت تھا، روزہ رکھنا چند روز بہت سخت تھا کہ بہرحال روز کھانا ٹائم پہ کھانا، ناشتہ ٹائم پہ ملنا، اگر ذرہ برابر لیٹ ہو جائے تو تیری بھر چڑھ جاتی تھی اور بیوی کو چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے، آج چائے میں تو نے لیٹ کر دیا، 6 بجے مجھے چائے چاہیے تھے، آج 6:30 بجے مل گئی۔ روز بہرحال بیچاری ڈری ہوئی بیوی، سہمی ہوئی بیوی، جیسے کہتے ہیں کہ ایک دم چوہا بلی والا حال کہ وہ بس اب اٹھنے والے ہوں گے ہمارے شوہر صاحب کہ بہرحال 6 بجے جو ان کے لیے چائے آمادہ ہونا چاہیے، ناشتے کا ان کا ٹائم ہے یہ آمادہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مہینہ آپ نے وہ سارے اپنے جو پروگرام جس کی آپ کو عادت تھی اس کو خدا کے لیے آپ نے چھوڑا ہے، اس کو معبود کے لیے آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کو خداوند عالم کے لیے آپ نے اس کی خوشنودی کے لیے وہ سب چھوڑا۔ اب وہ عادت آپ کی ٹوٹ گئی ہے۔ 1 مہینے تک آپ نے سگریٹ نہیں پی، پان نہیں کھایا، حقہ نہیں پیا، وہ سب عادتیں چھوٹ گئی۔ 1 ماہ تک وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی تھی۔ بہرحال کبھی میں نے ایک بات آگے بات میں عرض کر دوں کہ سگریٹ پینا، اس کا بھی پینا بھی یہ بھی حرام ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو حرام ہر مراجع نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی ہر مبتدی انسان جو ابتدا کر رہا ہے، شروعات کر رہا ہے سگریٹ پینے کی، بیڑی پینے کی، جو بھی شروع کر رہا ہے، یہ ابتدا اس کے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں، اس کے لیے منع کیا گیا ہے مراجع نے، اس کو باقاعدہ طور سے منع کیا گیا ہے کہ اگر یہ اب 1 مہینہ آپ نے جو ہے چھوڑ دیا،
1 महीना आपने छोड़ दिया, अब ये खत्म हो चुकी है। यानी अब तक चाहे अनजाने में आपने शुरू किया था, चाहे जानबूझ के शुरू किया था, आपको मालूम नहीं था, बहरहाल वो तो खत्म हो गई। जो पी रहा था पी रहा था। अब 1 महीना आपने नहीं पिया। बाज लोगों ने अहद कर लिया कि कसम भी खा ली कि बीवी की मोहब्बत में उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए कसम खा लीजिए कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने उनकी मोहब्बत में बहरहाल सिगरेट को कहा 1 महीना चलो कम से कम छोड़ देते हैं इनकी मोहब्बत में। 1 महीना आपने तर्क कर दिया, 1 महीना नहीं पिया, लेकिन अब दोबारा फिर ये इब्तिदा हो रही, हराम काम शुरू कर रहे हैं। या तो चलती रही, जो हराम कर रहे थे वो चलता रहता। अब छोड़ के दोबारा फिर शुरू करना। एक साहब बहरहाल अभी ज़ियारत पे, बहरहाल करबला वगैरह ज़ियारत पे एक साहब थे, बहरहाल वहाँ इसी तरह से वाज़ो नसीहत हो रही थी। हमने कहा कुछ तो कम से कम यहाँ से करके जाओ, अपने जो आदतें हैं उस आदतों को छोड़ कर जाओ। बड़े इसी तरह वाज़ो नसीहत चल रही थी। तो बहरहाल एक दिन काफिला करबला से निकलने वाला तो वेदा की ज़ियारत पढ़वाई गई और आकर मेरे गले बहुत मिले, बहुत ज्यादा बहरहाल गले मिले, रोए, कहने लगे मौलाना आपकी बात का मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ। आज मैंने इमाम हुसैन से अहद कर लिया है कि अब आज के बाद कभी मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र, कम से कम आपने इमाम हुसैन से एक अहद तो किया। कहा मैंने मौला से वादा कर लिया, मौला अब्बास से भी कहा मौला अब आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन अगर कोई पिला देगा तो इनकार भी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने मौला अब्बास से भी वादा कर लिया है और मौला हुसैन से भी वादा कर लिया है कि अब अपने पैसे की 1 सिगरेट मैं नहीं पीऊंगा। 1 सिगरेट अब अपने पैसे की मैं नहीं पीने वाला, लेकिन अगर कोई पिला देगा तो उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। ए भाई ऐसी कसमें भी ना रहे, ऐसी कसमें भी ना रहे। इस तरह ना जब छोड़ा है तो बिल्कुल ही छोड़ दो। आप लोग बहरहाल बहुत से लोग सवाल करते हैं वहां पर कि कत्लगाह में हम लोग जाते हैं या मौला हुसैन के जरी में जाते हैं, तो जरी में जाने के बाद वहां पे हम लोग देखते हैं कि उस जरी के अंदर जो है मसलन बहुत सी सिगरेट की डिब्बियां पड़ी हुई हैं और उसके अंदर सिगरेट पड़ी हुई है। तो लोग पूछते हैं क्या मौला हुसैन को मसलन माज़अल्लाह क्या लोग सिगरेट चढ़ा रहे हैं, वहां आका को सिगरेट चढ़ाई जा रही है, जो जहां लाला के इतनी सिगरेटें कत्लगाह के अंदर पड़ी हुई हैं या किसी मासूम के रोजे में पड़ी हुई हैं। तो नहीं, वो सिगरेट नहीं चढ़ाई जा रही। उस शख्स ने कसम खा ली है मौला मैं इस चीज को आपके यहाँ ये फेंक कर जा रहा हूं, ये आपके पास मैं रख के जा रहा हूं, अब इसके बाद मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। काश ऐसे ही हम चीजों को जाएं जब मासूमीन के पास, तो उससे वादे कर लें कि मौला हमने बहुत गुनाह किए हैं लेकिन अब जानबूझकर हम गुनाह ना करेंगे। अब कल का दिन, आज का दिन ये जो है, बहरहाल आज बहुत से लोग इतने गुनाह करते हैं कि वो पूरा 1 महीना शायद उतना गुनाह उन्होंने ना किया होगा, पूरा बदला निकाल लेते हैं, पूरा बदला निकालते हैं 1 महीने का कि 1 महीना मैंने ये सब नहीं किया था, आज वो सब करके दिखा दूंगा। आज अल्लाह को भूल जाते, कहते हैं आज अल्लाह नहीं है, बस आज नहीं, आज खुदा के खुदा ही नहीं है, आज तो बस जो कुछ है सब मैं ही मैं हूं। आज मेरी ईद है, आज ईद है, जो जो करना हो कर लो, आज आजाद है। नहीं, आज और डंडे पड़ेंगे, आज वाला दिन और डंडे पड़ेंगे। 2 बराबर आज जब आपको दिया जाएगा सारी चीजें, जब आपको डबल दी जा रही, यानी ड्यूटी जो आपने बढ़ाकर जो है नाइट ड्यूटी भी की है, दिन वाली भी की है, तो पैसा ज्यादा मिलता है आदमी को। जब डबल करता है तो पैसा डबल मिलता है। आपने जो 1 महीना रातों को भी जग जग के इबादत की थी, दिन में भी इबादत की थी, जिस वक्त इबादत नहीं भी करते तो उस वक्त भी इबादत की थी। अल्लाह ने तो हर सांस पे भी जो आपको सवाब दे दिया था, हर एक खत के ऊपर भी आपको कुरान का सवाब दे दिया था, हर एक सदक़े पे नहीं मालूम कितना खैर और खैरात आपके लिए लिख दिया गया था, वो सब दिया गया था। आज रोक लिया गया था कि आखिरी दिन जब जो है बहरहाल जब सारा फाइनल हो जाएगा, जब सारा कारखाने का काम हो जाएगा, सारे मजदूर जब आप जाने लगेंगे, तो अब उन मजदूरों को उनके तोहफे के तौर से एक अलग चीज भी दी जाएगी, उनको गिफ्ट भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनकी मजदूरी भी उन्हें दे दी जाएगी। डबल चीज मिलना थी। लेकिन अगर आज आपने वो सारे किए धरे पे अगर पानी फेर दिया तो वो सब भी गया और वो जो मिलने वाला था वो भी गया, यानी खसरत दुनिया वाला आखिरा हो गया। ना यहां के रहे ना वहां के रहे, खाली बस भूखे रह गए, वही बस हो गया और कुछ नहीं। रस्मन रोजे को अदा कर लिया, बस वही हमारे लिए हो गया। बहरहाल कोशिश करें कि हमेशा गुनाहों से बचें। 1 महीने जो हमारी आदतें हो चुकी थी, रोजों की भी आदतें पड़ गई थी, बहुत अच्छी आदत हमें हो गई। 1 हफ्ता 10 दिन तो हमें बहुत खला हम लोगों को, लेकिन उसके बाद आदत हो गई। बहुत से लोग तो बगैर सहरी खाए अगर नहीं उठे फिर भी रोजा लोगों ने रख लिया। इस गर्मी के मौसम में रखा, सर्दी के मौसम में रखा, हर तरह के मौसम में लोगों ने रख लिया, क्योंकि जिस्म को आदत हो गई थी, जिस्म आदी हो चुका था कि अब खाया ना खाया कोई असर नहीं पड़ता था। अब इस आदत को, इसमें हमने गुनाह
करना छोड़ दिए थे, आदत हो गई थी। जैसे ही जबान से कुछ निकलने वाला होता था फौरन रुक जाते थे। माह रमजान चल रहा है, खुदा का महीना चल रहा है, आदमी फौरन रुक जाता था। बहुत से लोग की जबानों का तकिया कलाम गाली हुआ करती है कि बहरहाल उससे अबे तबे और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के जो चला करता है वो सब वो कहा करते हैं, लेकिन खास तौर से इन अय्याम में वो इन चीजों का ख्याल करते हैं कि माह खुदा है, अल्लाह का महीना है। सामने वाला अगर कुछ कहना भी चलता सामने वाला टोक देते हैं, भाई जबान संभाल ले, ये खुदा का महीना है। बहरहाल वो जरा से किसी ने टोक दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर इंसान जो रुक जाया करता था। अपनी जबान को उसने लजाम में रखा, जबान को उसने काबू में रखा, अपने आप को बचाए रखा, उसको आदत पड़ गई। अब जैसे ही वो कुछ कहना चाहता था फौरन याद आता था खुदावंद आलम का महीना चले। मेरे भाई और बहनों, खुदा की अदालत हमेशा है, उसकी आंखें हमेशा, उसका कैमरा हमेशा चल रहा है। अब वही याद कर लो, जैसे ही कोई गलत काम करने चलो फौरन कह दो कि खुदावंद आलम हमें देख रहा है, परवरदिगार हमारे अमाल का नाजिर है, उसके फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठे हुए हमारे हर अमाल को लिख रहे हैं। चाहे तारीकी में अंजाम दें, चाहे खुले हुए दिन में अंजाम दें, हम जो कर रहे हैं वो सब देख रहा है। हमें आदत सी पड़ चुकी थी, अब उस आदत को बरकरार रखिए। रोजे की भी आदत पड़ी, कम से कम जो है महीने में 2 रोजा ये रख लिया करिए। आदत हो गई थी जुमा जुमरात जो है रख लिया करिए, या जुमे को रख लिया करिए, जुमरात को रख लिया करिए। कोई विलादत का दिन आ रहा है उस दिन रख लिए, कोई शहादत का, या जो मखसूसियां होती हैं उनको रोजों को रख लिया करिए, जो बहरहाल मफाती में जिक्र किया गया है, तौजुल मसाइल में जिक्र किया गया है, पूरे अय्याम में हफ्ते के जो अमाल उसमें, महीने के अमाल उसमें जिक्र किया गया रोज़ों को। तो यानी कोशिश करें कि वो तो आदत हो गई थी, रोज़ा तो रख ही रहे थे आप, कम से कम ये फजीलती ये चीज़ें हमको इंशाअल्लाह मिल जाएं। बहरहाल रोज़े ईद चंद चीज़ों को बहरहाल अंजाम देना। शब ईद के लिए भी गुस्ल वगैरह है, शब ईद की दुआएं हैं, वो इंशाअल्लाह वो आपको पढ़ना है, वो सारी दुआएं मौजूद हैं इंशाअल्लाह। बहरहाल नहीं भी होंगी तो ये टीवी वगैरह से लगाई जाएंगी, आप लोग उसको देखते रहेंगे, अली टीवी पे लगेगी, ये सब जगह चलेगी, आप उसको देखते रहेंगे दुआएं वगैरह। और उसके साथ साथ कि आज के जो अमाल होंगे, ईद के दिन के जो अमाल होंगे, उसमें है कि सुबह जल्दी उठ जाएं। पैगंबर की बहरहाल हदीस जिसको नकल किया गया है कि पैगंबर आजम जब ईद आया करती थी तो बहुत जल्दी, वैसे हमेशा उठा करते थे, लेकिन कहते हैं उस दिन सबको जो है जल्दी जल्दी सबको जगा दिया जाता था, सारे इज़्दवाज को जगा दिया जाता था। और सबको जगाने के बाद फिर उसके बाद यह है कि तैयारी होती थी ईद के दिन की। उस दिन गुस्ल है, गुस्ल किया जाए, गुस्ल के बाद बहरहाल नमाज, आमाल, दुआएं वो पढ़ी जाएं। और उसके बाद कहते पैगंबर हरकत करते थे, जाते थे ईदगाह यानी नमाज ईद पढ़ने के लिए। अमीरुल मोमिनीन की एक हदीस है, मौला फरमाते हैं कि जब ईद की नमाज के लिए जाए तो मशी करता हो, यानी पैदल चल के जाए बेहतर है। अब यानी कि सवारी पे ना हो, आप जाएं, दूर है किसका तो बहरहाल सवारी पे ना जाए, बहरहाल नजदीक कुछ दूर है तो यानी कोशिश करें, क्योंकि उस दिन उस पर भी अजर मिल रहा है, हर कदम पे हमें अजर मिल रहा है, वो अजर न छोड़ें। कि कोशिश करें कि जहां नमाज हो रही है, जहां नमाज ईद पढ़ाई जा रही है, वहां जो है पैदल चल के जाए, मशी करता हुआ जाए, माशियन वही उस दिन का लफ्ज आया है हदीस का कि बहरहाल चल कर जाए, पैदल चल के उस जगह पे जाया जाए ईद की नमाज पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो उस दिन के लिए और ताकीद की गई है क्या है कि जाने से पहले कुछ खाकर जाएं। ऐसा ना हो कि रोजे की नियत पहले ही से नियत पड़ गई, पहले आदत पड़ गई थी रोजा रखने की, अब आज भी जो है वो नियत रह जाए, नहीं, जाने से पहले कुछ अफ्तार किया जाए। जाने से पहले कुछ अफ्तार, किसी शीरनी, किसी मिठास, किसी चीज से अफ्तार किया जाए, खुशबू लगाया जाए, मुस्तहब है, ताकीद है। अच्छे लिबासों को पहना जाए, बेहतर लिबासों को पहना जाए, और अपनी फैमिली को एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाए, और नमाज ईद को अंजाम दिया जाए। और उसके बाद अक्सर होता है कि लोग बहरहाल जो खुतबा वगैरह दिया जाता है लोग भाग लेते हैं, नहीं, थोड़ी देर लगती है, उसमें बैठ जाएं, उसको आखिर तक, जैसे नमाज जुमा वगैरह में है खुतबा बहरहाल उसमें शामिल है, उसी तरह से ईद भी बहरहाल इसमें भी मुस्तहब है, ताकीद की गई है कि उसका जुज है, उसे शामिल किया गया, उसे बैठ जाए थोड़ी देर। अब तो हो ही गई ईद, करना ही क्या है, अब तो भूख की भी आपको आदत पड़ चुकी है, कितनी देर भूखे रह जाएं, कुछ नहीं, घर से खा के निकले हैं, नाश्ता करके निकलिए, कुछ खा के निकलिए, उतनी देर जाकर वहां बैठे रहिए। और नमाज खत्म होने के बाद जो सबसे अहम अमाल मुआनका करना है, हलो हाय नहीं कि हाथ बढ़ाए हाय हाय हलो ये जो हो रहा है आज अंग्रेजों वाला ये सब है, नहीं, बाकायदा बगलगीर होना। कहते जब दिल से दिल मिलता है तो मोहब्बत और बढ़ती है। शायद उस जगह आपका कोई वो दोस्त भी मिल जाए जो आपसे बिछड़ा हुआ, अगर वो आपकी तरफ से नजरें झुका कर जा रहा है, चुरा कर जा रहा है, घूम के जाकर उसके सामने खड़े हो जाओ, जाकर उसके गले से लग जाओ,
शायद आपका भाई वहां पर, शायद आपका कोई रिश्तेदार वहां पर, उस जगह से आपके बच के देखें। बाज मौका होता हम किसी से नाराज, उसे हम नहीं बख्शना चाहते कि हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसे नहीं बख्शेंगे, हम उसे। ये मेरे भाई फिर क्यों खुदा से उम्मीद करते हो? खुदा से हम भी तो बहुत सी चीजों की नाफरमानी करते हैं और उम्मीद रखते हैं खुदा हमें बख्श दे, खुदा हमें माफ कर दे। आज हमने उसके जरा सी नादानी के ऊपर हम जो है बोले उसने गलत किया है, उसने कोई गलत काम कर दिया। हम भी तो कितनी गलतियां करते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा हमें बख्श देता है। खुदा से हम उम्मीद भी यही रखते हैं, परवरदिगार हमने गुनाह किए हैं, हमने ये तेरी फरमान की नाफरमानियां की हैं, खुदा हमें बख्श दे। यहां पे अगर आप उसे बख्शेंगे खुदा आपको बख्शेगा। अगर आप उम्मीद रखते हैं, यानी ये आपकी तमन्ना है खुदा से कि खुदा है रोज़े महशर मुझे बख्श देना, माफ कर देना, खुदा भी कहेगा जब तूने मेरे बंदे को नहीं बख्शा था मैं तुझे क्या बख्शूं? मेरे बंदे का ख्याल नहीं किया तो मैं क्या तेरा ख्याल करूं? तो कम से कम ईद के दिन वो भी कोशिश की जाए इंशाअल्लाह कि एक दूसरे से गले मिला जाए, एक दूसरे से गले मिला जाए और मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाए और दुआ की जाए एक दूसरे के हक में, मोमिनीन के हक में, बिरादरान के हक में, मरहुमीन के हक में, सबके हक में जो है दुआ की जाए। ईद का दिन बड़ा मुबारक दिन है। इस दिन भी शहजादी कौनैन अपने बच्चों को आमादा करती है। आज एक बहरहाल एक वक्त भी थोड़ा ज्यादा, लेकिन 2 जुमले मैं अर्ज करूं। बहरहाल ईद ऐसा दिन है कि जिस दिन शहजादी अपने बच्चों को तैयार करती थी। जनाब रसूल खुदा आमादा होते थे, मौला अमीर कायनात आमादा होते थे ईद के दिन। 8वें इमाम की बाकायदा हदीस है कि मौला ईद की नमाज पढ़ाने के लिए बाकायदा ताकीद मौला ने की और बाकायदा ईद के खुशी के लिबास पहने जाते थे, न कि सोग का लिबास, न कि काला लिबास। मना किया गया, मकरूह है, कराहत है। बहुत से लोग बहरहाल काले लिबास हमेशा पहने रहते हैं और ईद के दिन खास तौर से पहनते हैं, कहते हैं मौला का जो है 10वां है। आप मौला का 10वां है। क्या इमाम हुसैन से बढ़कर मौला अली को आप चाहते हैं? क्या इमाम हसन से बढ़कर आप मौला अली को चाहते हैं? बीबी ज़ैनब कुलसुम से बढ़कर चाहते हैं? मौला का 10वां किस मासूम ने 10वां मनाए? खाली एक मासूम है कि जिनका तीजा 10वां हफ्तुम सब कुछ मनाए गए, इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन बकिया किसी मासूम का जो है 40वां या और दूसरी बहरहाल जो रस्में हैं नहीं मनाई गई। रोज़े शहादत मनाया जाता है। मासूम से बढ़कर हम नहीं हैं, हम उनके ताबईन हैं, उनके चाहने वाले हैं। मासूम से बढ़कर थोड़ी ना हम हो सकते हैं, चौथे इमाम से बढ़कर तो हम नहीं हो सकते हैं, खुद इमाम हसन हुसैन से बढ़कर तो हम नहीं हो सकते हैं कि मौला की शहादत हुई, उसके बाद नमाज जमात बाकायदा नमाज ईद पढ़ाई गई है। मासूम ने ईद पढ़ाई है, वाजिब है, दौर मासूम में वाजिब है नमाज। ईद की नमाज जिस वक्त मासूम मौजूद हो, नमाज जुमा है, ईद है, ये सब चीजें वाजिब हैं। जैसे रोज की पंजगाना नमाज उसी तरह वाजिब है। आया मुमकिन है कि मासूम वाजिब को तर्क कर दे? आया मुमकिन है? बताएं आप लोग कि मासूम बहरहाल, यानी मासूम वाजिब तो बहुत दूर, कहते वो चीजें कि जो मुबाह और वैसी हैं उनको कभी माज़अल्लाह तर्क नहीं कर सकता, तो वाजिब को कहां से तर्क कर देगा? मासूम ने बाकायदा कहते लिबास फाखिरा पहना है आका ने। बाप की शहादत हुई, ठीक। अब ये नहीं कि पूरी दुनिया को हमेशा सोग ही में रखा जाए। अब ऐसे ही रहे तो पूरे साल आपके लिए कोई दिन बचा ही नहीं। पूरे साल आप जो है खाली रोते ही निकल जाए। फिर तो ना आपको शादी करना है, ना ब्याह करना है, बहरहाल साधु संत की तरह ऐसे घूमते रहिए, फिर कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं होना है। क्योंकि मासूम की शहादतें पढ़ रही, किसी मासूम का 40वां है, तो किसी मासूम की बरसी है, तो किसी मासूम का तीजा है। बहरहाल वो हमें हक नहीं बनता फिर ये कि हम आप इस चीजों को करें, नहीं, क्योंकि हम मौला के चाहने वाले हैं ना, मौला के चाहने वाले हम जो करेंगे बस वही होगा। मौला कहें, मौला की नहीं मानेंगे, मौला को मानेंगे लेकिन मौला की नहीं मानेंगे। कुरान को मानेंगे लेकिन कुरान की नहीं मानेंगे। रसूल को मानेंगे, रसूल की नहीं मानेंगे। ऐसा ना करें। जो मासूमीन ने किया है वही हम अंजाम दे, उसके आगे न बढ़ें, हद से तजावुज न करें। बहरहाल जो हमारे उलमा ने बताया है, जो मुज्तहिदीन ने बताया है, आज बहरहाल बहुत बुरा जमाना, क्या कहूं कि आज उलमा की भी इतनी तौहीन की जा रही है। लोग ना समझी में, अनजाने में, खुदा इंशाअल्लाह हिदायत करे परवरदिगार, बहरहाल कि लोग उलमा की तौहीन करते हैं, मुज्तहिदीन की तौहीन करते हैं। जितनी उनकी उम्र हुई उतनी तो हमारी उम्रें भी ना होंगी, जितनी उन्होंने किताबें पढ़ डाली हैं उतने हमारे खानदान भर की उम्रें ना होंगी। ज़हमतें की उलमा ने, मुज्तहिदीन ने ज़हमतें की। क्या हक बनता है हमें किसी को बुरा भला कहने का? अगर हम अच्छा ना कहें तो हमें बुरा भी कहने का हक नहीं बनता। क्यों अपनी आकबत खराब करते हो? क्यों रोज़े महशर जाकर खुदा की बारगाह में तुम्हें जवाबगो होना पड़े?
क्यों ऐसा करें? जब एक आम से बंदे के लिए मना किया गया है कि एक आम सा बंदा, उसकी तुम जो है हकारत ना करो, उसे बुरा ना कहो, उसे भला कुछ उसके लिए हक में ना कहो। 6 बरसे के मुज्तहिदीन, उलमा, मराजे, हमारी शान है ये। ज़हमतें की हैं इन्होंने, पूरी उम्र इन्होंने ज़हमतें की हैं। आज हम 4 किताब रटने के बाद जो है उनके लिए हम लोग बैठकर जो है बुराइयां करते हैं। खुदाया खुदाया खुदा रा सुधर जाएं, जानबूझकर अनजान ना बने। मालूम है हमको, हम सबको, आपको मालूम है, उसके बाद भी अनजान बनते हैं। ऐसा ना करें। बहरहाल ज्यादा तफसील में नहीं जाना। शहजादी कौनैन ने अपने बच्चों को आमादा किया है। यहाँ तक कि हदीस रवायत मिंबरों से सुना करते हैं आप कि एक मरतबा मदीने में इमाम हसन इमाम हुसैन पहुंचते हैं, देखा सब बच्चे नए नए लिबास पहने हुए हैं। आकर माँ से कहते हैं, माँ, ए मादरे गिरामी, हमारा लिबास कहाँ? कहते शहजादी फरमाते हैं, खैयात के पास मौजूद है। शहजादी की जबान से निकलना था और जन्नत से फरिश्ते खैयात बनकर, दर्जी बनकर आपके लिबासों को लेकर आ गए। देखा बाहर पूरा वाक़या आपके सामने है कि आपने देखा कि पैगंबर आजम साथ साथ जा रहे हैं, दोनों नवासों के हाथों को पकड़े हैं। एक मरतबा बच्चे इसरार करते, नाना जान सबके पास सवारी है। नाना हमारे पास तो सवारी नहीं है, रसूल सवारी बन जाते हैं। सीरत पैगंबर है, सुन्नत पैगंबर है। पैगंबर ने कांधों पर बिठाकर बाकायदा ईद की नमाज पढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, बच्चों को साथ साथ लेकर जा रहे हैं। बहरहाल मासूमीन ने जिस चीज की हमें ताकीद की है उस चीज का ख्याल, शरीयत का मजाक मत बनाओ, दूसरों को कहने का मौका न दो, दूसरों का हम पर उंगलियां उठाने का मौका न दो। जो शरीयत चली आ रही है उस शरीयत की तहकीक करें। जमाना पढ़ा लिखा है, जाहिल तो नहीं है आप कि जाहिल आप हैं, जाहिल के झुरमुट में बैठे हुए हैं। जाएं किताबें पढ़ें, किताबों में भरा पड़ा है। कहीं मौलाना आप बताइए, मैं नहीं बताता हूं, काहे मैं बताने लगा? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है, बताने वाला दौर गया। जाएं, जाकर खुद तलाश करें। बहुत बताया गया, समझ ही नहीं आ रहा आपके, तो क्या किया जाए? 32 सालों से बताए तो जा रहा है, बताई हुई बातों पर कहां हमारे आप लोग अमल कर रहे हैं? अब जाकर खुद आप तहकीक करिए, खुद रिसर्च करिए, खुद जाकर देखिए आया मौजूद है ये तारीख में, ये नहीं है। नहीं है तो ना करें, अगर नहीं है तो ना करें, लेकिन मौजूद है तो उसको करें, मौजूद है तो उसको करें और अपने बच्चों को भी तरगीब दें। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। बहरहाल इतना ज्यादा मज़ाहिम हो गया, उसके लिए बहुत माजरत। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर ऐसे ही मिलेंगे आप सबसे इंशाअल्लाह। बहरहाल जहां कहीं भी मैं मासूम की बारगाह में जहां जहां रहता हूं, आप सबको खुदा शाहिद हमेशा मैं याद किया करता हूं, आप सबके हक में दुआ किया करता हूं। जिस मासूम की भी बारगाह में रहूं, हमेशा आप सबके हक में दुआ करता हूं। इंशाअल्लाह मशहदुल मुक़द्दस में भी, मौला की बारगाह में भी आप सबको हमेशा याद करता रहूंगा। आए दुआ करते हैं इस दिन की ईदी ले लें, अपने जमाने के इमाम से ईदी ले लिया जाए। मौला से दुआ करते हैं और खुदा से एक और ईदी ले लें, अपने इमाम ज़माना की ईदी ले लें। दुआ करें परवरदिगार से, पालने वाले हैं माबूद, ये आज का दिन और ये रात परवरदिगार, ये महीना हम सब पर मुबारक कर दे। खुदाया परवरदिगार जो हमारे हक में खैर है उसको इनायत कर दे। माबूद जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। ए परवरदिगार हमारे बच्चों को इस दीन हक्का पर समझ के चलने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया हमारे उलमा के साये को हमारे सरों पर बरकरार रखना। परवरदिगार पालने वाले हमारे उलमा मुज्तहिदीन को उन्हें तूले उम्र इनायत कर दे। पालने वाले मुखालिफीन को जलील व खार व रुस्वा कर दे। ए मेरे माबूद तुझे वास्ता देते, 4 दमासमीन का तुझे वास्ता देते हैं, इस मुकद्दस महीने का जिसे ईद करार दिया गया है। ए मेरे माबूद इस दिन के सदके में परवरदिगार पालने वाले जो परेशानी हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। खास तौर से जिन जिन लोगों ने मुझसे इल्तिमा से दुआ कहा या नहीं कहा, बहुत से मरीज और बीमार इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, दुआओं के मोहताज किसके आए, कितने आइज़ व अकारिब रिश्तेदार हॉस्पिटलों में हैं जो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। ये परवरदिगार तुझे इस महीने का वास्ता, इन 30 दिनों का जो गुजर चुका है उसका वास्ता, तुझे तेरे अहले बैत का वास्ता परवरदिगार जो मरीज और बीमार हैं उन्हें सेहत आजला इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती इनायत कर दे। माबूद हम सब के मरहुमीन को गरीक रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे। खुदाया परवरदिगार हम तेरे आसी बंदे हैं, माबूद तेरे ना समझ बंदे हैं, मासूम तो नहीं। ए परवरदिगार हम सब के जितने गुनाह कबीरा और सगीरा हैं उन सबको माफ कर दे। खुदाया हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे आबा और अजदाद मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार बहुत से माँ और बाप वालिदैन ने दुआओं के लिए कहा है
कि अपने बच्चों के शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान है। खुदाया इन दिनों के सदके में, इस माह के सदके में परवरदिगार जिन्हें तूने औलाद दी है, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है, बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, खुदाया अहले बैत अथार के सदके में, चार मासूमीन के सदके में परवरदिगार उनको बराबर के रिश्ते और कुफो इनायत कर दे। ये परवरदिगार जो गोदियां वीरान है उन्हें आबाद कर दे। परवरदिगार जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। ये माबूद तुझसे दुआ करते हैं हर घर में एक सकीना और एक असगर इनायत कर दे। ये पालने वाले ये परवरदिगार तुझसे इल्तिजा करते हैं ईदी दे दे इस साल की माबूद। ये मेरे माबूद जिस तरह तमाम रोजों पे हम सब ने गुंबद साया देखा है परवरदिगार, आइम्मा मासूमीन जो कि बकी में दफन है परवरदिगार पालने वाले बेहक अहल बैत बेहक चार मासूमीन, ये पालने वाले जन्नतुल बकी पर भी मौत से पहले गुंबद साया देखना नसीब कर दे। माबूद जिनके दिलों में भी हज ज़ियारत की तमन्नाएं हैं उन सबको हज ज़ियारत पे जाने की तौफीक इनायत कर दे। ए खुदाया बहरहाल ये रसानहा जैसे अली टीवी हैं और बहुत से हैं, सब ये जो ज़हमतें कर रहे हैं अहले बैत के पैगामात को नशर इशात कर रहे हैं, इनकी जितनी टीम है जो जिस तरह के भी मोमिनीन या जो भी इसमें जिस तरह की भी खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह से भी मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, परवरदिगार पालने वाले इनके बहरहाल जितने ये जो जहमत करने वाले हैं परवरदिगार अहले बैत अथार के सदके में इन सब की हम सब की जो जो शरई हाजतें हैं उसे इनायत कर दे। इन सब की जो जो मुश्किल हैं गिरफ्तारियां हैं उन सबको दूर कर दे। परवरदिगार जो इसमें शरीक होते हैं इनके मरहुमीन के जो बहरहाल फातिहे पढ़े जाते हैं अपने मरहुमीन की तरफ से जो इन सवाब में शरीक होते हैं परवरदिगार उन सब के तमाम मरहुमीन को गरीक रहमत कर दे। ए मेरे माबूद तुझसे इल्तिजा करते हैं माबूद माबूद चाहता मासूमीन के सदके में दुआओं में जो दुआ है मेरे माबूद आशिया हुकूमतें जो जगह जगह पर इस वक्त मुश्किलात में हैं, जगह जगह पर मुश्किलात में हैं कि उन पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, खास तौर से बहरहाल कि अभी एक अपना मुल्क है बहरहाल ईरान की जहां हर तरफ से मुसीबतें आई हैं परवरदिगार पालने वाले चाहरदा मासूमीन के सदके में अहले बैत अथार के सदके में पालने वाले उस इनकलाब को इनकलाब इमाम ज़माना से मिला दे। खुदाया जो इस्तिकबार हुकूमत अमरीका इसराइल यहूदी सऊदी जितने भी बहरहाल गलत निगाहें हैं परवरदिगार उनको कूर कर दे। खुदाया उनके शर को उनकी तरफ पलटा दे। ए मेरे माबूद ए मेरे माबूद ए मेरे माबूद इस इनकलाब को इनकलाब इमाम ज़माना से मिला दे। खुदाया परवरदिगार जहां जहां शिया ने हैदर कर रहा और दुनिया में जिंदगी कर रहे हैं पालने वाले उन सब की जान माल इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत कर दे। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपके बच्चों को आपकी फैमिली को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ बहरहाल आप सबसे इजाज़त चाहता हूं कि इंशाल्लाह जैसे आप सबसे मुलाकात हुई है ऐसे इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।